حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو اس آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ کو چھپا کر دینا، نمبر 2 مصیبت کو چھپانا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور نمبر 4 لا الہ الا اللہ کہنا۔ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، دل میں اتر جاتا ہے اور دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے۔ روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا سکتا ہے، بدلے ہوئے لوگوں کو نہیں۔ رشتے تو آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، بس ہمیں معلوم اچانک ہوتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آپ 4 دن خاموش رہ کے دیکھیے، لوگوں کے نزدیک آپ کی کیا حیثیت ہے پتہ چل جائے گا۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، روٹھا نہیں جاتا۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ضروری۔ زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب ایک ایسا انسان مل جائے جو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہو۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ سچا ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص شخص مل جائے وہ دنیا کا امیر انسان ہوتا ہے۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بے وقوف سمجھتی ہے۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہو جاتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہو جاتے ہیں، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ مت کرنا کبھی غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ اس دنیا کے بھیڑ میں بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ منزلوں کو خبر ہی نہیں، سفر نے کتنا کچھ چھین لیا ہے ہم سے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر کرتی ہے۔ یا اللہ، بس تجھ سے اتنی ہی دعا ہے کہ کبھی گرنے نہیں دینا، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ اے میرے اللہ، مجھے اتنا بدل دے کہ کوئی کتنا بھی تکلیف دے
मुस्कुरा कर तेरा शुक्र अदा कर सकूं। एक गलत शख्स से मिला धोखा 10 सही इंसानों पर एतमाद करने के राह में रुकावट बन जाता है। आप कितने ही मर्जी अच्छे हो जाएं, जो लोग आपको गलत समझते हैं वह आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। इखलाक भी रिज़्क की तरह है, इसमें भी कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब और कुछ इंतहाई मुफलिस हैं। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। तुम वक्त को छोटी चीज़ मत समझो, इसने बड़े बड़े बादशाहों के दिन पलट दिए हैं। दुनिया में सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो चीख कर और बदलहजी से अपने वालिदैन से बात करता है। ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा दुख इसलिए बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि माँ बाप परेशान न हो। बेहसी कह लें या नाकद्र, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैरख्वाह को उसके चले जाने के बाद पहचाना है। अगर अल्लाह ने वह ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं करते थे, तो यकीन रखो वह कुछ ऐसा देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। ज़िंदगी की उलझनें शरारतों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वह समझदार हो गया है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नर्म मिजाज बना देते हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। अगर किस्मत में लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ का हक नहीं देता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि रिज़्क और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे ऐसी चीज़ की तलब लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, आसमान की बुलंदियों को छूकर भी वह अपनी गर्दन झुकाकर रखता है। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं, शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वह गुनाह करना ही छोड़ दे। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या न मिले, अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वह अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। किसी बेकसूर पर तोहमत लगाना यह आसमानों से भी भारी गुनाह है। ज़िंदगी आज अगर मुश्किल है तो कल आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो और खूब मांगो, वही तुम्हें देगा और उम्मीद से बढ़कर देगा। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। ज़िंदगी की हर ठोकरें यह एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। चाय और किरदार जब भी गिरते हैं दाग ज़रूर लगाते हैं। रिज़्क का मिलना तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का तुम पर करम और अता है। जब अकल पर पर्दा पड़ता है
तो सबसे पहले समझाने वाले पर ही गुस्सा आता है। मोहब्बत माँ से सीखो और सब्र बाप से। तरबियत की कमी को तालीम कतई पूरा नहीं कर सकती है। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतरीन है, ताकि तन्हाई में अल्लाह ताला को तुम पुकार सको। अगरचे असबाब साथ नहीं है, लेकिन यूँ लग रहा है कि रब कोई मौजज़ा ज़रूर करेगा। माँ एक मुक़द्दस रूह है जो हमेशा से हम पर शफ़क़त व मोहब्बत के फूल बरसाती रहती है। जो माँ से महरूम है वह हर मुशर्रत से महरूम है। मुश्किलात आती है और चली जाती है, देखना यह होता है कि कौन किस हद तक साथ निभाता है और कौन छोड़कर चला जाता है। सिर्फ दिखावे का अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा है।